بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تحفظ نموشر سہلت ریلی تنظیم مغلیہ دفتر کے زیر اہتمام نکالی جا رہی ہے اور اس کا آغاز جو ہے بلدیہ موڑ سے شروع ہوا ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار اس وقت ریلی جو ہے غلامہ کے چوک میں پہنچ چکی ہے۔ تنظیم مغلیہ دفتر کے زیر اہتمام ریلی نکالی جا رہی ہے۔ سرطن سے جدا سرطن سے جدا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہائے 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 یا رسول اللہ بہت بھی قبول ہے بہت بھی قبول ہے جان بھی قربان ہے جان بھی قربان ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندگی قبول ہے اللہ اکبر یا علی سرطن سے جدا سرطن سے جدا اللہ اکبر اس وقت ریلی میزان بینک جی روڈ دفتر سے گر رہی ہے اور لوگوں کی کثیر تعداد ریلی میں شریک ہے۔ تنظیم مغلیہ دفتر کی طرف سے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا سرطن سے جدا ایسے نعرے سے ریلی گونج رہی ہے۔ نثار احمد واد صاحب بھی ریلی میں موجود ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ چند ایک الفاظ گستاخوں کے خلاف بولیں۔ جی خاص صاحب گستاخ رسول انڈین خاتون نے جو گستاخانہ بیان دیا ہے اس کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے، میرا یہ مطالبہ ہے
تو اس کو کیا پھر اقتدار تک پہنچایا جائے اس کی اور مودی حکومت جو اس کی ترقی کر رہی ہے اس کو بھی کیسے محفوظ کیا جائے امت مسلمان کا جو انہوں نے جذبات کا انگیزہ کیے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو والا کرتے ہیں. تو یہ تھے نثار احمد وان صاحب انجمن حقوق شہریہ دفتر کے صدر اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آصف بادشاہ کو میں جانتا ہوں یہ گجرا والا ہے نمائندہ اس وقت لوگوں سے بات کریں گے. موت بھی قبول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یک لفظ جو ہے وہ اعلان ہو جاتی ہے اور اس مسئلہ پر چار بار سب بات کرنے کے لیے تیار ہو. انڈیا جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوری حکومت کہتا ہے, ہمارا اس کو یہ پیغام ہے کہ جمہوریت کے یہ تقاضے نہیں ہیں جس پر تم چل دیے ہو اور تمہارے رہنماؤں نے جس قدر بے دردی کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے, پوری دنیا کا مسلمان اس پر بے چین بے قرار ہے. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسلمان بے بس ہے, تم جو چاہو کرتے رہو, مگر اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انا کفیناک المستہزئین کہ اگر مسلمان اپنی قوت کے اعتبار سے کسی دور میں مجبور اور مقہور ہی کیوں نہ ہو جائیں, مگر اللہ تو جابر اور قاہر ہے, وہ ساری دنیا پہ قادر مطلق ہے. اس نے یہ بات کا اعلان کر رکھا ہے کہ اپنے نبی کی ذات کے لیے وہ تمام استہزاء اور مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ گستاخ رسول جب بھی انسانیت کے ہاتھوں سے بچا ہے اللہ کی پکڑ میں ضرور آیا ہے. وہ وقت دور نہیں ہے کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی, واپس رجوع نہ کیا, امت سے معافی نہ مانگی تو اللہ کی پکڑ جلد آئے گی, جس سے انڈیا بھی پارا پارا ہوگا اور مودی حکومت بھی تباہ ہوگی. ہم آج بھی اپنے نبی کے شہدا ہیں, ہم کل بھی اپنے نبی کے شہدا ہیں. یہ ایک جان کے آسو جان کی ہو نبی کی ذات کی قربان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمارے ساتھ اپنے موریا دفتر کے صدر بھی موجود ہیں, اس سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا میسج ہے. سر ساڈا صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے ناطے ہوئے سارا دل دے رہا دکھے وہ یہ کہ سارا دیکھنا کی تکلیف ہوئی ہے سارے نبی دی شان سے گسائی کی تھی کوئی ظلم نہ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اس طرح یہ نہ ہو تو پانی سر سے بول جائے. میں ریکویسٹ اسی طرح دوبارہ کوئی ایسی کوشش ہوئی کہ سوچے سلمان سبزی صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی سوالات سے بات کر رہے ہیں کہ آج کی احتجاجی ریلی میں وہ انڈیا کو کیا بیچ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب مادہ پرستی کے دور میں ہر کوئی اپنے لیڈر
अपने रहनुमा के लिए निकल रहे हैं और हम सभी महबूब कायनात नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस इरादे और नीयत के साथ निकले हैं कि अगर हुजूर की नामूस के लिए जान भी देना पड़ी तो हम इंशाअल्लाह परवाह नहीं करेंगे अल्लाह की तौफीक से। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग इस काम का इत्तेकाब कर रहे हैं, हुजूर कायनात अलैहिस्सलाम की शान कल भी बुलंद थी और आज भी बुलंद है। और इंशाअल्लाह अगर हुक्मरानाने बाला ने इस बात पर नोटिस न लिया तो फिर तारीख गवाह है कि कहीं गाजी इल्मुद्दीन शहीद मैदान में आए, कहीं मुमताज कादरी मैदान में आए, कहीं आमर शहीद मैदान में आए, कहीं गाजी खालिद मैदान में आए, तो फिर इंशाअल्लाह तारीख अगर किसी इल्मुद्दीन शहीद को पुकारेगी तो हम इंशाअल्लाह आएंगे अल्लाह की तौफीक से। हम दोबारा फिर मुमताज कादरी बनेंगे इंशाअल्लाह, आमर शहीद बनेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे लिए पैगाम ये है कि जहां हम ये कहते हैं कि वो लोग तौहीन न करें, हमारे लिए भी पैगाम है जहां हम उनकी मसनूआत का बाइकाट कर रहे हैं वहां हम उनके रस्म और रवाज का बाइकाट करके भी साबित करें कि हमारे लिए रहनुमा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे लिए उसवा हसना भी रसूलुल्लाह है। अल्लाह हुजूर कायनात अलैहिस्सलाम के गुस्ताखों को नेस्त व नाबूद फरमाए और हमारी इन काविशों को कबूल फरमा के हमारे लिए जरिए नजात बनाए। हमारे साथ एक और आपस में उनसे भी बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम तंजीम मुगलिया गखड़ के प्लेटफॉर्म से इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम उम्मत रसूल के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हम अपनी पाकिस्तान की हाकिम वक़्त को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंडिया को अपनी सतह पे, अपनी हुकूमत की सतह पे उनका बाइकाट किया जाए, उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, उनसे माशी मुकाबला किया जाए और अवाम की ये जो लोग हैं ये सारे उम्मत रसूल के अपनी जान की कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हम सब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करते हैं आपको इस चीज़ का अंदाजा हो गया होगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर किसी चीज़ को कोई भी चीज़ किसी चीज़ से दरेक नहीं करेंगे, अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे और अपना आप भी कुर्बान कर देंगे। हमारे साथ रैली निकाली है इसमें हमारा जो वक़्फ़ है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस पे जो इंडिया ने कभी हरकत की है, जो बयान किए हैं इंडिया से हम बाइकाट करते हैं और वक़्त हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि उनके साथ हर किस्म की तल्लुकात, ट्रांसफरी तल्लुकात और तजारती लोगों का सारे तल्लुकात ख़त्म करें, उसके सफ़ीर को पाकिस्तान से बदल किया जाए और इस मलूना को सजा दी जाए। बिल्कुल अपील करते हैं हम अपने हुकूमत से। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सब लोगों के जो नज़ारा है तंजीम मुगलिया के ख्यालात सुने हैं और सबका एक ही ख्याल है कि गुस्ताह रसूल की एक सदा सतन से जुदा, सतन से जुदा। और यह भी मुतालबा किया गया है कि इंडियन मसनूआत का बाइकाट किया जाए हुकूमती लेवल पे, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताही की है इन लोगों ने उसका उनको भरपूर जवाब दिया जाए। उनकी मसनूआत का बाइकाट करके और एहतजाजी रैलियाँ निकाल के ये जो तंजीम मुगलिया दक्षिण में आज रैली निकाली है। एक मिनट में सामने की कोशिश की गई है, इससे ये साबित
लेकिन वो मखलूक के दर्जे से दिखते हैं। अगर ये कहा जाए कि वो पस्ती में आकर इंसानियत से जानवर बने तो जानवरों की भी तौहीन है कि जो नबी वसल्लम की जाते हैं उसकी तौहीन करते हैं और जानवरों से भी नीचे गिर जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर मुल्क पाकिस्तान में नबी की हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर आज एक्शन ना लिया तो शायद अगली जो काल है वो अमन की काल नहीं होगी। उसका दमदार सो काल दुनिया के जो संकेत है वो कौन होगी, हिंदुस्तान की मदद होगी। तो इस तरह जिसमें जब एक्सपर्ट को पहले ये पैगाम दिया जा चुका है, आज मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी जो आर्मी है उन्होंने हमें बात दी है। अगर ये सारे उनके ऊपर चढ़ पड़े तो फिर उनके रस्ते में से मदद हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये अमन के इस पैगाम को एक सीरियस मैसेज देना चाहिए। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के खिलाफ तौहीन की कोशिश करेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जो 23 मार्च की परेड है, ये जो हमारे सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए लाल किले के हमारे जो चलने वाला झंडा है पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाएगा। तो ये बात इन सब के हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि हम सब ठीक है, अगर एक मुनज़्ज़म फॉर्म से कोशिश की जाए तो हिंदुस्तानी कभी को पनाह नहीं मिलेगी। हर चीज का सोशल और आज तक हमारे बहुत ज़्यादा खुश बहुत कामयाबी रैली निकाली है और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आम आवाम की अपील करता हूँ मीडिया का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए, ये सरकार का इसका बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, बाइकआउट मुकम्मल कर दिया जाए। इसका मुर्दाबाद, उसकी सरकार मुर्दाबाद। एक साथ बड़ा सा टीम ने अपने दुकान में फरमाया था बरखाना लगा फिक्र, बहुत बड़ी आयत है। फिक्र में तो छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है नमूसला महमूद, हम 6 घंटे 6 दिन 6 साल 60 साल भी बात करते रहे तो उनको सारा में दारा नहीं आता नहीं जाता। इसलिए मुसलमा कज़ाब से लेकर नौपुर शर्मा तक बहुत सारे गुस्ताख आए और याद भी नहीं लोगों को याद भी नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल 1500 साल पहले आज तक लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताक क़यामत लोगों के दिलों में रहेंगे। और ये गुस्ताख जितने भी आए ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बल्कि हम लोगों में से इल्मुद्दीन शहीद गाजी उद्दीन शहीद आमर चीमा पैदा करने के लिए होगा। और इंशाअल्लाह हम मुसलमानों में इल्मुद्दीन शहीद गाजी और आमर चीमा मुमताज कादरी ये पैदा होते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक दफा फिर कहता हूँ, अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया है वो उसको कभी भी कोई भी नीचा नहीं दिखा। सारा माना अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नबी, अल्लाह ने अपने नबी का जिक्र बुलंद कर दिया और इंशाअल्लाह वो बुलंद भी रहेगा इंशाअल्लाह। आखिर में दुआएं की जा रही है। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
शान अक़दस में आपकी मोहब्बत में या अल्लाह ये रैली निकाली, या अल्लाह हमारी इस कावश को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही तरीके से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करते। और या अल्लाह हमें आपके दुश्मनों के साथ पूरा मुकाबला करने की और उनकी दुश्मनी में या अल्लाह उनकी नफरत हमारे दिलों में और मजबूत कर दे। या अल्लाह जिस तरह इस मसले में हमारी उम्मत मुत्तहिद हुई है, या अल्लाह इसी तरह की उम्मत को इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब करना। और या अल्लाह हर तबके के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा फरमा दे। और या अल्लाह आपका नाम तूने बुलंद किया है, इंशाअल्लाह आपके नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये गुस्ताख लोग अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं और हमारे ईमानों का इम्तिहान लेते हैं। या अल्लाह हमारे ईमान की हमारे पुख्तगी नसीब फरमा। और या अल्लाह हमारे अंदर इसी तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तरह, आमिर चीमा की तरह और मुमताज कादरी की तरह के नौजवान पैदा करते रहो या अल्लाह, और उनको दुश्मनों से बदला लेने की हिम्मत और तौफीक पैदा फरमा। और या अल्लाह जहाँ जहाँ भी तेरे नबी के गुस्ताख पैदा हो उसी जगह पर या अल्लाह तू हमारे मुसलमानों को या अल्लाह तू उनका मुकाबला करने की और उनका अंजाम तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त तो प्रोग्राम पे मौलाना साहब ने दुआएं हाजिर भी कराई है और उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।